شبیر نے راولپنڈی میں ایک پڑھے لکھے اور برسر روزگار خاندان کو خس و خاشاک کی طرح بکھرتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے۔ دو خاندانوں کے درمیان رشتہ داری کیا رنگ لے کر آئی، آپ بھی دیکھیے۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ہنا کی والدہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ان کا شوہر بھی قریب ہی موجود تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بس تھوڑا ٹائم دیں آپ مجھے۔ جی بیٹی یونیورسٹی سے آ جائے تو پھر میں یہ بات اس کے کانوں میں ڈالوں گی اور پھر میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ہنا کی والدہ نے فون بند کیا تو والد تجسس بھرے انداز میں بیوی کے قریب پہنچ گئے۔ کیا اگنی کا ہی فون تھا؟ جی مبارک ہو، دیکھیں اللہ کا نظام، کل وہ ہماری لڑکی کو دیکھے گیا، ماشاءاللہ انہیں اتنی پسند آئی ہے کہ نکاح کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ویسے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اصولاً تو ہمیں بیٹی سے ہی پوچھنا چاہیے اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ ویسے لڑکا مجھے بہت پسند آیا، سرکاری ملازم ہے، 17 گریڈ کا آفیسر ہے اور ہماری بیٹی نے بھی تو ایم فل کر لیا ہے۔ ویسے لڑکی کی تھوڑی بہت انکوائری تو آپ نے کروانی ہوگی، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بالکل بھائی، وہ تو ہمیں کرانی پڑے گی، اور آپ کو تو پتا ہے آج کل حالات کیسے ہیں، لوگ دکھتے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہنا کہاں رہ گئی؟ میں سے فون کروں۔ ہلو، ہاں ہنا بیٹا، کہاں رہ گئی بیٹا؟ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ اچھا ٹھیک ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ بھائی آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا بنا لیجیے۔ ارے بھائی اپنی بیٹی کے لیے کھانا تیار ہے، اس کی پسند کا کھانا پکایا ہے، بے فکر رہیں آپ۔ ویری گڈ، ہمارے لیے تو کبھی نہیں بنایا آپ نے۔ آپ جا کے آدمی دھوئیں، آپ کے لیے بھی دیتے ہیں، چلو۔ فیصل آباد کے رہائشی اور ریٹائرڈ سرکاری ملازم اشفاق نے اپنی بیٹی ہنا کی منگنی راولپنڈی میں رہائش پذیر گریڈ 17 کے ایک سرکاری افسر سے طے کر دی تھی اور دونوں خاندانوں میں تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہنا کے گھر لڑکے والے آ رہے تھے اور ہنا کی والدہ اور خود ہنا بھی ڈرائنگ روم کی سجاوٹ اور صفائی میں مصروف تھی۔ امی یہ بات یہاں سے رکھوا دیا آپ نے، وہاں رکھوا دینا دیوار کے ساتھ۔ اچھا تو بیٹا میں ابھی رکھوا رہی ہوں۔ اچھا تم ایک کام کرنا، ٹرالی کی ڈسٹنگ اچھے سے کر دینا۔ امی میں نے سارا کام کر دیا، بالکل پریشان نہ۔ بھولو ابھی تک نہیں آیا، میں فون کر کے دیکھتی ہوں۔ نہیں بالکل آپ فون مت کیجیے گا، آپ پہلے ہی بہت دفعہ فون کر چکے ہیں، اچھا نہیں لگے گا بار بار فون کریں گے تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں کیوں بار بار فون کر رہے ہیں۔ اچھا چلو ایسا کرو، دیر ہو رہی، تم جا کے تیاری پکڑو، میں کچن میں دیکھتی ہوں جو کام بچا ہے۔ ارے تمہارے ابو کہاں رہ گئے؟ پتہ نہیں بتا کر تو نہیں گئے، ارے وہ دیکھیں آ گئے۔ اسی دوران ہنا کے والد بھی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اور یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیتے ہو تم لوگ؟ بند رکھا کرو بھائی، تمہیں پتا ہے نا آج کل ڈکیتیاں ہوتی پھر رہی ہیں۔ پھولے سے کھلا رہ گیا اور اب 2 بج چکے ہیں، آپ جا کے کپڑے چینج کریں۔ مجھے کیا کرنا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی۔ چینج کرنا ہے آپ کو۔ اچھا بابا تم کہتی ہو تو میں کر لوں۔ اچھا ابو وہ آپ کے کبرڈ میں میں نے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے ہیں، آپ لے لیجیے وہاں سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی جا کر چینج کر کے۔ جلدی سے چینج کر کرو۔ تھوڑی دیر بعد شبیر نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں ہنا کا منگیتر مجاہد، اس کے والدین اور ہنا کے والدین بھی موجود تھے۔ مہمانوں کو ناشتہ کرایا جا رہا تھا۔ پھر ہنا سر پہ دوپٹہ لیے اندر آئی، اس نے سب کو ادب سے سلام کیا اور ٹرالی واپس لے کر چلی گئی۔ فیصل آباد کی رہائشی اکنامکس میں ایم فل ہنا کی کچھ عرصے بعد مجاہد سے شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ راولپنڈی منتقل ہو گئی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ہنا کے گھر کی گھنٹی بجی تو اس کی ساس نے ہنا سے دروازہ دیکھنے کے لیے کہا۔ ہنا دیکھو گیٹ پہ کون ہے؟ جی امی دیکھتی ہوں۔ ہنا نے دروازہ کھولا تو کوئی رشتہ دار خاتون موجود تھی۔ جی السلام علیکم امی، کوئی خورشید آپا آئی ہیں؟
अच्छा खुर्शीद साहब, अरे आओ आओ अंदर बुला के ले जाओ। अरे आपा, वालेकुम अस्सलाम। आए आए, बैठे बैठे। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। वो मैं अपनी शर्मिंदगी मिटाने आई हूँ ना, शादी में नहीं आ सकी थी ना इनकी। अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे अरे इधर आओ बेटी। जी। अरे आपा क्या कर रही है, इसकी क्या जरूरत है? अरे वाह, शादी में नहीं आई तो क्या बहू को मुंह दिखाई नहीं दूंगी? अरे आंटी अब तो 1 साल हो गया शादी को, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे लो इनकी बातें सुनो। अरे लो बेटा रखो। शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया। और आपा और बताएं, सब ठीक तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है सब। और पोता पोती की क्या खबर है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे आंटी अब तो 1 साल हो गया शादी को, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे लो इनकी बातें सुनो। अरे लो बेटा रखो। शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया। और आपा और बताएं, सब ठीक तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है सब। और पोता पोती की क्या खबर है? पोता पोते भी हो जाएंगे, अभी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सवाल सुनकर हिना वहाँ से चली गई। सास ने एक नजर बहू की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी। अरे आपा, हमें कोई कुछ बताता ही नहीं है, कब होगा, होगा भी कि नहीं। सास ने जब देखा कि बहू चली गई है तो उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल तब्दील हो गए। अरे क्यों नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा पोता होगा। अरे हाँ, वो मेरी एक डॉक्टर नहीं जानने वाली, अगर तुम चाहो तो वहाँ दिखा दो बहू को। बस रहने दें आपा, वो मुआयना नहीं कराएंगी। कहती है कि मैं ठीक हूँ, अपने बेटे का मुआयना कराएं। अरे गजब खुदा का, लगती तो नहीं है वो ऐसी। आपा, लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। अरे बहू चाय ले आई, मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। अम्मी बस भी करें आप मेरी तारीफें, अब जैसी भी बनाइए आप पी लें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले अम्मी। लाओ बेटा लाओ। अरे आपा, पूरे घर का काम करती है मेरी बहू। माशाल्लाह, प्यारी भी है बहुत। शादी के 3 बरस तक हिना के यहाँ कोई औलाद ना हो सकी और उसे बांझपन के ताने सुनने पड़े। शौहर भी बुरी तरह बरगस्ता हो चुका था और मियाँ बीवी के अब वाजिबी से ताल्लुकात चल रहे थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हिना का शौहर सुबह के वक्त दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था और उसे उसकी टाई नहीं मिल रही थी। वो इंतहाई गुस्से के आलम में था और अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर फेंकता जा रहा था। टाई कहाँ है मेरी? हिना टाई मिल जाएगी मेरी? क्या हो गया, क्यों शोर मचाए जा रहे हैं? देख ये क्या कर रहे हैं, पूरा कमरा फैला दिया है। यही तो रखी है टाई। पता नहीं कहाँ रख। सही से देखते नहीं और शोर मचाते रहते हैं। ये ले। शौहर ने हिकारत से टाई छीन ली। हनी किस मनहूस घड़ी है मेरी तुमसे शादी हो गई थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाले जा रहे हैं, हर वक्त मुंह फूला रहता है आपका। हाँ फूला रहता है। तुम्हारे खानदान वालों ने ताने दे दे के दिमाग खराब किया हुआ है कि बे औलाद हूं। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? जाकर दिखा दे डॉक्टर को। मैं क्यों दिखाऊं? मैं क्यों दिखाऊं भाई? तो मत दिखाए ना, जब देखो धौंस जमाते रहते हैं, हर वक्त चिड़ 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 चिड़। दिमाग खराब करके रखा है। हिना कपड़ों के ढेर को अलमारी में ठूंस कर जाने लगी तो उसका शौहर भी टाई गले में अटका कर बाहर निकल गया और जाते जाते दरवाजा जोर से बंद करता गया। शादी के 3 साल के बाद हिना के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई, जिस पर हिना का शौहर अपनी बीवी से मजीद मुतनफ्फिर हो गया। शब्बीर ने देखा कि हिना का शौहर भूखा था और अपनी बीवी को आवाज दे रहा था। कहाँ हो भाई? खाना मिलेगा या नहीं इस घर में? अरे आ रही हूँ ना, थोड़ा रुक जाए। मुन्नी को सुलाकर आती हूँ, देती हूँ खाना। कब से इंतजार कर रहा हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी मुन्नी और तुम। खाना ला के दो मुझे। शोर मत मचाए, आ रही हूँ। पता नहीं क्यों शोर मचाए जा रहे हैं। बोला है आ रही हूँ, फिर भी शोर कर रहे हैं। ये ले खाना। जुबान से ज्यादा अगर हाथ चला लो ना तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं शोर करूंगा।
हाथ ही चला रही थी, सुला रही थी उसे। आप तो शोर करे जा रही हैं यहाँ पर। अभी सुला कर आएंगे, उठ जाएगी वो। रख दिया ना खाना, अब दफा हो जाओ। जा ही रही हूँ। थोड़ी देर में हिना खाना ले आई और तकरीबन पटकने के अंदाज से शौहर के सामने रख दिया। जिंदगी झंड कर दिए। ये मैं निकालूं अब रोटी भी? और पोता पोता क्या खबर है? पोता पोते भी हो जाएंगे, अभी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। हनी किस मनहूस घड़ी है मेरी तुमसे शादी हो गई थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाले जा रहे हैं। हर वक्त मुंह फूला रहता है आपका। हाँ फूला रहता है। तुम्हारे खानदान वालों ने ताने दे दे के दिमाग खराब किया हुआ है कि बे औलाद हूं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाकर दिखा दे डॉक्टर को। मैं क्यों दिखाऊं? जुबान से ज्यादा अगर हाथ चला लो ना तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं शोर करूंगा। हाथ ही चला रही थी, सुला रही थी उसे। आप तो शोर करे जा रही हैं यहाँ पर। अभी सुला कर आएंगे, उठ जाएगी वो। रख दिया ना खाना, अब दफा हो जाओ। हनी किस मनहूस घड़ी है मेरी तुमसे शादी हो गई थी। बेटी की पैदाइश पर न सिर्फ शौहर बल्कि मुबैना तौर पर सास और नंदे भी खुश नहीं थीं। फिर एक रोज मियाँ बीवी में शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद एक बड़ा वाकया रूनुमा हो गया। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त हिना बच्ची को लिए गहरी नींद सो रही थी। शौहर ने अपनी बीवी को हिकारत और नफरत से देखा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक तकिया उठाया और अपनी बीवी के मुंह पर रख दिया। शौहर ने हिना को दम घोटकर खामोशी से हलाक कर दिया था। उधर जब कई रोज तक हिना के वालिदैन का बेटी से रब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गए। बेटी और दामाद दोनों का खून बंद था, जिस पर वो फैसलाबाद से रावलपिंडी पहुंच गए। रावलपिंडी पहुंचने पर दामाद और उसके घर वालों ने बताया कि डाकुओं ने डकैती के दौरान उसकी बीवी को गला दबाकर हलाक कर दिया था। ये कहानी हिना के वालिदैन को हजम न हो सकी और थाना कचहरी के बाद दामाद से तफ्तीश की गई तो उसने बेटी और बीवी को हलाक करने का एतराफ़ कर लिया। ये है वो मुबैना सफ़ाक पढ़ा लिखा जाहिल और जालिम शौहर जिसने बेटी होने पर अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। रिमांड के बाद जब मुजाहिद से तफ्तीश होती है, मुजाहिद को तफ्तीश के जरिए पूछा जाता है कि ये बीवी को और बच्ची को किस तरह कत्ल किया है, वो कोई चीज़ नहीं बताता। फिर इसको हम अपने पास उठा के इससे तो ये इस बात का लालच देते हैं कि अगर तुम हमें सच्ची बात बता दोगे तो हम इसका तुम्हें फ़ायदा देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। इस बातों में आके मुजाहिद हमें असल बात ये बताता है कि मैं, क्योंकि मेरी बीवी के साथ साबका रंजिश थी, काफ़ी दफ़ा हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। बीवी मेरी वालदा को और मेरी बहनों को अपने घर नहीं आने देती थी, तो मैंने अपनी बीवी को खुद कत्ल किया है। फिर जब इससे मज़ीद पूछा जाता है कि तुमने किस तरह कत्ल किया है, तो ये बताता है कि 3 दिन पहले मेरी बीवी के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद मैंने उसके मुंह पे तकिया रख के उसको कत्ल कर दिया। मुजाहिद के जो मतलब फैमिली है, वालदा की और सिस्टर, मुजाहिद के 4 साल तक औलाद नहीं हुई शादी के बाद, तो उनकी तरफ से बिल्कुल इसको ये ताना दिया जाता था कि तुम्हारे घर बेटा नहीं पैदा हुआ। इस चीज़ की भी तस्दीक हुई है। उसके बाद जब औलाद हुई है तो मुजाहिद खुद ये बात ये करता है कि मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा, लेकिन इसकी फैमिली की तरफ से इसको ये ताना मिलता था। लेकिन जो हमारी तफ्तीश है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह आई है कि मुजाहिद एक क्रिमिनल आदमी है। उसने ये सारे मतलब टूल जो यूज़ किए हैं कि मेरी औलाद नहीं थी या मेरा बेटा नहीं था, अब हमदर्दी के लिए वो यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उसने होशो-वास में होकर अपनी बीवी को भी कत्ल किया है, बच्ची को भी कत्ल किया है। तफ्तीश के दौरान मुजाहिद ने ये इंकशाफ किया है कि मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी 18 ग्रेड में, मैंने 3 माह बाद प्रमोट होना है। अगर आप पुलिस मेरी मदद करेगी, मुझे छोड़ेगी, तो मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसाऊंगा। इससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह और साफ ज़ाहिर होती है कि मुजाहिद ने अपने होशो-वास में और एक मनसूबाबंदी के तहत अपनी बीवी को और बच्ची को कत्ल किया है ताकि ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, मैं दूसरी शादी करके दोबारा ज़िंदगी का आगाज़।
یہ بدقسمت واقعہ کس طرح پیش آیا، ہنا کے والد کی زبانی آپ خود ہی سن لیجئے۔ میں نے کہا یار آپ میری بات کراتے، کہتا جی وہ کہتا تھا کہ میری کوئی طبیعت نہیں ٹھیک لہذا میں کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد دوبارہ فون ہی نہیں اٹھایا کسی نے۔ میں اگلے دن پھر منگل کو وہاں سے اپنے گاؤں سے چل پڑا ادھر کو اسلام آباد راولپنڈی کی طرف۔ تو میں تقریباً 8:30 پہنچا ہوں تو دیکھا کہ گھر کے آگے وہ ہمسائے وغیرہ اور یہ اس کے بھائی وغیرہ کھڑے ہیں، تو کہتے جی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو میری بیٹی جو ہے 2-3-4 دن پہلے کی فوت ہوئی تھی، کیونکہ اس کی باڈی جو ہے نا وہ خراب ہو چکی تھی۔ جو نواسی ہے وہ بھی فوت ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی باڈی ٹھیک تھی۔ وہ چند گھنٹے پہلے ایسے لگتا تھا جیسے چند گھنٹے پہلے فوت ہوئی۔ اس کے بھی منہ سے خون تھا، جس طرح اس کو نا دبا کے نا منہ اس کا تو اس کو مارا ہے۔ تو بیٹی کا تو ایسے تب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی شکل ہی بگڑ گئی تھی، جیسے جلایا ہوا ہے پہلے مار کے، تو اس کو مٹانے کے لیے نا اپنے ثبوت کو، تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتا رہا، پاؤں بھی جلے ہوئے لگتے تھے۔ وہ بعد میں اس نے کیا، پہلے یعنی کہتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ میں وہ پہلے اس کو مار دیا تھا، میں نے سرانا منہ پہ رکھ دیا۔ ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے بیٹی کو لکھایا پڑھایا، اچھی تربیت کی اور بظاہر ایک پڑھے لکھے نوجوان سے شادی کر دی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک درندے کے حوالے کر رہے تھے جو اسے قتل کر دے گا، محض اس لیے کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے ساہیوال میں ایک پیارے بچے کو دیکھا ہے جسے اس کی ماں دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی خالاؤں اور ماموں کی توجہ سے محروم تھا۔ ابا جی نے جو جائیداد تقسیم کی ہے اس میں سے زیادہ حصہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر عبداللہ کو کچھ ہو گیا تو تمہاری بہن کی جائیداد کس کو ملے گی؟ بہن بھائیوں میں تو بٹے گی۔ ایسا لگتا ہے کسی امیر خاتون کا گھر ہے۔ شوہر کی باتوں سے عبداللہ کی سوتیلی بہن کچھ اور طرح سے سوچنے لگی تھی۔ اتنا کچھ تو ابا جان نے آپ لوگوں کو دیا ہے، وہ حصہ کم تو نہیں ہے، پھر بھی دوسروں کے حصے پہ نظر ہے آپ لوگوں کی۔ 8 سال کا عبداللہ تھا ہی اتنا پیارا کہ جو اسے دیکھتا اسے پیار آ جاتا۔ شبیر نے عبداللہ کو دیکھا تو وہ چپ چاپ اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا۔ بیٹا اتنی دیر سے کام کر رہے ہو، بھوک نہیں لگ رہی کیا؟ امی بس تھوڑا سا کام رہ گیا، اس کے بعد کھا لوں گا۔ نہیں، پہلے کھانا دو یہ مجھے۔ جاؤ ہاتھ منہ دھو، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں شبیر نے دیکھا کہ عبداللہ کی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اسی دوران عبداللہ کی خالہ کا فون آ گیا۔ ہاں باجی۔ ہاں ذرا کیا کر رہی تھی؟ عبداللہ کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ کیوں بگاڑی ہو تم اس کو بولو کھانا خود کھایا کرے، بڑا ہو گیا ہے وہ۔ ارے باجی وہ جب تک کھانا ہی نہیں کھاتا جب تک میں نہ کھلاؤں۔ ہاں بگڑ جو گیا ہے۔ ارے باجی کیوں کہہ رہی ہو میرے بیٹے کو اس طرح؟ بیٹا منہ تو کھولو۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب تو وہ ہمیں سلام دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ ارے باجی بچہ ہے۔ عبداللہ خالہ کہہ رہی ہے تم ان کو سلام نہیں کرتے؟ امی میں تو کرتا ہوں، پر وہ خود ہی اتنا برا سا منہ بنا لیتی ہیں۔ باجی وہ تو کہہ رہا ہے آپ ہی برا سا منہ بنا لیتی ہیں۔ لو اب اسے جھوٹ کی بھی عادت پڑ گئی۔ خیر میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ مجھے بھائی جان بتا رہے تھے کہ ابا جی نے جو جائیداد تقسیم کی ہے اس میں سے زیادہ حصہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جا بیٹا ہاتھ منہ دھو لے۔ کیا کہہ رہی تھی باجی تم؟ کچھ نہیں۔ خیر میں گھر آؤں گی نا پھر آرام سے تم سے بات کروں گی۔ اچھا باجی، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے۔ تھانہ غلہ منڈی کی حدود میں واقع نواحی گاؤں 86-9L میں رہائش پذیر عذرا کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ دونوں بیویوں سے اولادیں تھیں۔ عذرا کے والد نے اپنی جائیداد دونوں بیویوں کی اولادوں میں تقسیم کر دی تھی۔ عذرا کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے بیٹے کو گود لے کر پالا تھا جو اب 8 برس کا ہو گیا تھا۔ 8 سالہ عبداللہ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر سوتیلی خالہ کی آنکھ میں کھٹکتا رہتا تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ عبداللہ کی خالہ اور اس کا خالو کسی گہری سوچ میں تھے۔ ہاں بھائی، تو کیا سوچا تمہاری بہن نے؟ کس بارے میں؟ ارے عبداللہ کے بارے میں۔ مجھے نہیں پتا بھائی، وہ جانے اور اس کا بیٹا جانے۔
अरे काहे का बेटा, तुम ले पालक है। ले पाला से तो क्या हुआ, अजरा ने उसे माँ बन के पाला है। और अब सुना है कि अब अपनी जायदाद भी उसके नाम कर रही है तुम्हारी बहन साहिबा। हाँ तो सही तो कर रही है भाई, अजरा अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम नहीं करेगी तो फिर किसके नाम करेगी? पता नहीं शर्म में ऐसी गुंजाइश है भी या नहीं। अरे क्या तुम शराब को लेकर बैठ गए हो? मुझे नहीं पता कि शराब में क्या हुक्म है, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल कहती है ना, तो अजरा अपनी जायदाद का हिस्सा अपने बेटे के ही नाम करेगी, चाहे वो ले पाला की क्यों ना हो। अरे सारी जिंदगी बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी। अरे फर्ज करो मेरे मुंह में खाक, अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन की जायदाद किसको मिलेगी? बहन भाइयों में तो बटेगी। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, और तुम ये क्या सुबह सुबह कहानियां लेके बैठ गए हो? मैं वैसे भी आज अजरा के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था। अच्छा अच्छा, मेरा भी सलाम कह देना। और ये देख रही दोबारा में दरारें आ रही हैं। तो मैं बोल रहा था अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं घर को ठीक करवा देता। अपनी बहन के घर जा रही हो ना, उसका घर देखना जरा, ऐसा लगता है किसी अमीर खातून का घर है। और बातों बातों में ना अपनी बहन को जरा टटोलना कि जायदाद का कितना हिस्सा उसके हिस्से में आ रहा है। मुझे ना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं तुमको, जा रही हूँ मैं अजरा के घर। बस बक 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 बक। शौहर की बातों से अब्दुल्ला की सौतेली बहन कुछ और तरह से सोचने लगी थी, और 8 साल अब्दुल्ला उसकी निगाहों में मजीद खटकने लगा था। शब्बीर ने देखा कि दरवाजे पर बेल हुई तो अब्दुल्ला दौड़कर दरवाजे पर चला गया। कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? किचन में। कौन आया? अम्मी खाला आई है। सलाम किया तुमने? हाँ हाँ सलाम कर लिया, तुम कहाँ हो? अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं बस किचन में साग बना रही थी। जाओ गेट बंद करो और खाला को पानी पिलाओ। माशाल्लाह से बड़ा हो गया तेरा बेटा। हाँ माशाल्लाह 8 साल का हो गया है। हाँ बस अपना होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या मतलब बाजी? मेरा जिगर का टुकड़ा है वो, और ऐसी बात ना किया करो। अब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने अपना नहीं दिया तो गैर सही। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया, अगर उसे पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। खैर कल तुम्हारे बहनों ही कह रहे थे कि ले पालक का जायदाद में शरई तौर पे कोई हिस्सा नहीं होता। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने अपना नहीं दिया तो गैर सही। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया, अगर उसे पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। खैर कल तुम्हारे बहनों ही कह रहे थे कि ले पालक का जायदाद में शरई तौर पे कोई हिस्सा नहीं होता। क्यों? उनको इतनी फिक्र क्यों है मेरी जायदाद की? थोड़ी बहुत है, जो भी है वो मेरी है, और मैं कुछ भी करूं। हाँ हाँ खैर तुझे पता तो है वो हर किसी के काम में टांग अड़ाते हैं, छोड़ तू उन्हें। वैसे बाजी हद है हबीब, इतना कुछ तो अब्बा जान ने आप लोगों को दिया है, वो हिस्सा कम तो नहीं है, फिर भी दूसरों के हिस्से पे नजर है आप लोगों की। अल्लाह ना करे, अरे हम क्यों तेरी जायदाद पे नजर रखने लगे? मैं तो ऐसे ही एक बात कह रही थी, तू तो बुरा ही मान गई। अब्दुल्ला पानी लेकर आओ, खाला के पास आकर बैठो, इतने दिन के बाद आई है खाला। आज माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा है, मगर हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराता। खाला के घर क्यों नहीं आते तुम? मामा लेकर ही नहीं आती। मम्मा लेकर नहीं आती? आप खुद ही तो कहते हो वहाँ कोई आपसे प्यार नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तू अब हमसे मिलना ही नहीं चाहती है, सच बात यह है। तेरा साग जल रहा है, देख जाके जल्दी। अच्छा मैं आती हूँ। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मा से कहना संडे को खाला के घर जाना है, ठीक है?
अब्दुल्ला की खाला मुनाफिकत की आखिरी सतह पर थी। उसके दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बहन का ले पालक उसकी आंख में बुरी तरह खटक रहा था और बहन को जायदाद हाथों से निकलती नजर आ रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अजरा के सौतेले शादीशुदा भाई बहन सर जोड़कर बैठे हुए थे और राजदारी से कोई मंसूबा बना रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला की खाला एक रात खामोशी से अपनी बहन के घर में दाखिल हुई तो सब सो रहे थे। वो दबे कदमों अब्दुल्ला की पलंग के पास गई, उसे कुछ सुंघाया और फिर बहुत एहतियात के साथ गोद में उठाकर उसे घर से बाहर ले आई, जहां वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर अब्दुल्ला को बिठाकर ले गई। दूसरे रोज अब्दुल्ला को घर में ना पाकर उसकी मां ने हंगामा खड़ा कर दिया था। सौतेले बहन भाइयों से पूछा तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, जिसके बाद अब्दुल्ला की मां ने अपनी सौतेली बहन और दीगर रिश्तेदारों पर अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो अजरा की सौतेली बहन आसमा ने बच्चे को गला दबाकर कत्ल करने और लाश नहर में फेंकने का एतराफ कर लिया। अब्दुल्ला को गला दबाकर कत्ल करने के एतराफ के बाद रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश तलाश करना शुरू कर दी थी। ये है वो मनाजिर जब रेस्क्यू टीम नहर में बच्चे की लाश तलाश कर रही थी। बिलाखिर लाश मिल गई। पुलिस ने दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इसमें खातून अजरा बीबी जिन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, अब्दुल्ला बच्चे का नाम है, और उसको 8 साल पहले इसने अडॉप्ट किया था। तो अजरा बीबी के नाम अपनी विरासत में 3 कनाल ज़मीन आई और जो कि वो अपने ले पालक बेटे के नाम करना चाहती थी। ये बात उसकी फैमिली को काबिल कबूल नहीं थी और उसका जो एक भाई और सतीली बहनें, उन लोगों ने मनसूबाबंदी की और इनका एक अजीज था जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर था, उसके साथ उन्होंने प्लानिंग की और उस बच्चे को मारने का मनसूबा बनाया। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को घर से अगवा किया और उसका गला दबा के उसकी लाश करीबी नहर में फेंक दी। तो इसमें जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की और ये मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उसके बाद नहर की जो इन्होंने कई तरह गोताखोरों को बुलाया और पूरी नहर की बंदी की और उसकी डेड बॉडी नहर से बरामद कर ली। इस वाक़े में मुलविस तमाम सफाद मुल्जिमान जो हैं वो अब सब गिरफ्तार हो चुकी है पुलिस ने। और ये है 8 साला बच्चे की माँ। मियाँ मेरा 5 साल हो गए फौत हो गया होया सी। एक मेरी बेटी गुंगी बहरी, वो मेरे कोल ते एक बेटा, एक मेरी मजदूर अम्मी। असी चारों जने इत्थे रह रहे सी। यह जगह विरासत सी, मेरे अब्बू दी जगह सीगी, मेरे चाचू होना दे नाल। उन्हां दे हिस्से उन्हां नूं दे छड्डे, जेड़े मेरे अब्बू दा हिस्सा सी वो मेरी अम्मी दे नाम सी। पिछों आउंदे पिछे सी मेरे कजन, मेरे चाचे सक्के दे बेटे। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ 10:30 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤੇਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ शामिल। शब्बीर को मालूम हुआ है कि अजरा का शौहर 5 बरस पहले इंतकाल कर चुका था और अजरा अपनी एक माजूर बेटी और ले पालक अब्दुल्ला की परवरिश कर रही थी कि सौतेले बहन भाइयों ने जायदाद की लालच में बच्चे को कत्ल कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्बा जी ने जो जायदाद तकसीम की है उसमें से ज्यादा हिस्सा तुम्हें दिया जा रहा है। अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन की जायदाद किसको मिलेगी? बहन भाइयों में तो बटेगी।
ऐसा लगता है किसी अमीर खातून का घर है। शौहर की बातों से अब्दुल्ला की सौतेली बहन कुछ और तरह से सोचने लगी थी। इतना कुछ तो अब्बा जान ने आप लोगों को दिया है, वो हिस्सा कम तो नहीं है, फिर भी दूसरों के हिस्से पे नजर है आप लोगों की। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।